चालू करो भाई। I think we can start the meeting now. Yes. Start now. Yeah. A very good afternoon to all the friends. I welcome you all on behalf of Use Exchange Chartered Accountant Study Circle EIRC on this webinar hosted today on changes which has been made in Companies Act. There are a lot of changes being made throughout the year, but this time due to COVID-19, we have seen a lot of announcements being made and circulars being brought forward lately by our government of India. It might be clear to most of them, but still an in-depth study or in-depth requirement is on the subject is required, so that any confusion can be cleared and we can help our clients accordingly. So today we have organized this seminar basically on the changes which have been made in Companies Act, as well as various other compliances which we are required to make on the same. And we have a learned speaker on the same, CA Mohit Bhotaria ji. I welcome you, sir. Thank you. With this, I would say that with all the members are in a good health and staying home, following the government initiative of staying home so that we can fight this COVID-19. With this, I would hand over the proceeding to our Deputy Convener Saroj Swaika ji to introduce formally our speaker, and then we can start on the meeting. And one more information to all the participants, that whatever questions we have during the session, you can put up in the chat box. We have the moderators who will be collecting those questions and will be answering by the end of the session. We'll have 20-25 minutes session at the end to have this question answers round. Over to Saroj Swaika ji. Thank you, Naveen. Can you hear me? Yes. Thank you, Naveen. वहाँ भैया देख रहा है क्या पापा? Good afternoon, friends. Thank you all for being here with. Today we have among us a very popular face among our CA fraternity, Sri Mohit Bhotaria ji. Though he requires no formal introduction, but still I would like to take this opportunity to enlighten some of his achievements and accomplishments. Sri Mohit Bhotaria ji stood first in Chartered Accountancy final in Eastern region. He has served as President of Use Exchange for this for the year 13-14. He stands as a co-opted member of Corporate Law Committee EIRC ICAI for 2013 and 2015. He is also co-opted member in Capital Market Committee of Merchant Chamber of Commerce for 2015. He is also co-opted member in study group of ICAI on guidance notes and upgradation of existing AS on the basis of corresponding in AS. He is also empaneled as quality reviewer, peer reviewer, and with FRRB ICAI. He has made various presentations on Companies Act 2013 and did implementation for various corporates. He has addressed on taxation, company law, and non-banking financial company issues at ICAI, ICAI, SI, MCA, and various study circles under ICAI and Comptroller and Auditor General of India and other platforms. He has handled in aggregate more than 1,000 statutory audits of PSU, banks, and private sector corporates. He is also an independent director at Excel Crop Care Limited, company listed at BSE. No further more introduction to him. Now I invite and hand over the proceedings to Mohit Bhotaria ji. Welcome, Bhotaria ji. Please enrich us with your proceedings. Thank you, Convener Naveen ji. Thank you, Deputy Convener Saroj ji. The past presidents of Use Exchange, seniors in the profession, friends. आपत्ति ही आविष्कार का जन्म लेती है. नवीन ने अपना टेन्योर एक नए आविष्कार से शुरू किया है. I think this is the first meeting we are having over
video conferencing, and I must compliment Naveen for taking this great initiative. आगे भी चल के कुछ महीनों तक तो हमारे को लगता है हमारे को ऐसे ही Zoom meetings में ही आगे बढ़ना पड़ेगा in view of the difficulties in COVID-19. So what I have done, Jawharji and Naveenji told me that I have 1 hour 20 minutes for the presentation. So what we'll do, we'll discuss all the relevant circulars which have been issued in the last 1 month, particularly in view of this COVID-19. Then we have a company scheme, fresh start scheme. So we'll take questions on that. We have a FAQ on that, for which I have made a presentation. And since we are most of us are closely associated with the Views Exchange, what I will suggest that during the course of the session also, if you have any questions, because I will be dealing with number of circulars, you can put on the chat box. The moderators can present me the questions as and when it happens, or we can take it at the end of the session as the convener may feel expedient. Now let us start with the first circular. There is a circular number 10/220 2020 dated 23rd March 2020 in relation to clarification of spending on funds for COVID-19. Now the government has clarified that if a company spends funds for COVID-19, it is an eligible CSR activity. Now what is an eligible CSR activity? It is also clarified that if you spend funds for healthcare, for promotion of preventive healthcare, for sanitation, and for disaster management, if a company spends for these items which are covered in Schedule 7, Clause 1 and Clause 12 of the Schedule 7, then these will be classified as CSR activities. Therefore, anything say in relation to what you called measures for preventive healthcare, for what you call PPE kits, for sanitization, for like number of companies what are doing whenever their employees are entering, they have made a sanitization door so that all employees who enter the premises enter through the sanitization. Laptop. So all these expenses which will be incurred by the company would clarify for expenditure on CSR activity. Now thereafter, on 10th of April, government has again issued a circular on a CSR. So what they have said, and many of the things are known to each one of us, but again, it is my duty to bring out the contents of the circular. Number one, contribution to Prime Minister Cares Fund is an eligible CSR expenditure. Number two, contribution to Chief Minister's Relief Fund or State Relief Fund, even for COVID-19, since it is not an item covered under Schedule 7, it will not be a eligible CSR activity. However, contribution to State Disaster Management Authority, I repeat, State Disaster Management Authority to combat COVID-19, it will be again a CSR expenditure. Now, a number of questions have arose that I have employees, I have workers, I pay them wages, I pay them salaries. I have daily workers, I have casual workers, I have temporary workers. We also pay them wages. Now, what about them? Now, government has said in this circular that whatever you are paying to them is a part of your contractual obligation. It is your statutory obligation, so you cannot call it a CSR activity. But the pertinent question which was raised to the government that in this lockdown period, where our offices are closed, our factories are closed, and even if we are required to pay them the salary, the wages, whether these will form part of expenditure on CSR activity. The government has said that, and I repeat the word, it may sound interest to many of us, that payment of wages to temporary or casual or daily wage workers during the lockdown period is a part of moral / humanitarian / contractual obligation. They have used all the three words, that it is a moral obligation, it is a humanitarian obligation, and it is a contractual obligation. Therefore, it will not form part of CSR activity. Now, but they have said that, a very interesting thing, they have said that if you are paying anything above the wages to your daily workers, to your casual workers, to your temporary workers, over and above the wages, whatever normal wages you are required to be paid to them, you are paying that. But over and above, if you pay a one-time ex gratia payment to these workers for fighting COVID-19, again for fighting COVID-19,
and this is approved by the explicit policy of the board. There is a declaration by the board that this is a one-time payment, ex gratia payment made to these workers to fight COVID-19, and this is also certified by the chartered accountant of the statutory auditor of the company. Then this will qualify as a CSR expenditure. Therefore, there is one, what you call, good thing that whatever we are required to pay, if say maybe in the case of necessities, especially for what you call the daily workers, the people who come from far off different towns, and who come to the factories for say from UP to Bombay or from UP to West Bengal, if there are laborers which are hired, and the company for sanitation, for healthcare, for preventive healthcare, if the company makes a one-time payment to them to fight COVID-19 over and above the salaries, then that will also be qualify as CSR expenditure. Now we come to the next circular. This is circular number 11, 2020. This was issued on 24th of March 2020. The government has given a number of exemptions to the companies. Now we'll deal with each of the exemptions one by one. Number one, the government has said that, look, I have come out with a number of schemes. I have come out with Vivad Se Vishwas scheme for direct tax. I have come out with indirect tax scheme. Now I want also I have from time to time, on the recommendation of various committees, I have removed compoundable offense, non-compoundable, and made them compoundable. I have replaced fine with penalty. I have over the years, over the last few months, I have also replaced provisions replacing prosecution with penalty, because I do not want the corporate sector to be burdened with prosecution. Therefore, as a fresh start, what I am saying, whatever documents you have failed to file earlier, now avail this a window. There will be a window from 1st April to 30th September. अगर आपने कोई भी document नहीं file किया है, they have given a list of documents. There are 76 documents. इस 76 documents में से 54 documents are under the Companies Act 2013. 12 documents are under the Companies Act 1956, and rest are under the LLP Act. So there is a list of forms. Documents means forms. कि अगर आपने ये 76 फॉर्म नहीं फाइल किया है एक पहले, तो आप अभी एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर दो और सारे के सारे फॉर्म फाइल कर दो. एंड वंस यू फाइल द फॉर्म, हम आपसे कोई एडिशनल फीस नहीं लेंगे. देयर विल बी नो चार्ज ऑफ एडिशनल फीस, देयर विल बी नो पेनल्टी, देयर विल बी नो प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ दीज फॉर्म्स. So we will discuss this point in the last part of our presentation when we take the company fresh start scheme, because this is just a precursor to the scheme. So I have given you an introduction. We will discuss this in detail at the end of the session. Now we come to section 173. There is a relaxation in section 173. Abhi kya hai? Law says that a company needs to hold 4 board meetings a year, and the gap between the 2 board meetings cannot exceed 120 days. अब ये असुविधा हो रही है लोगों को, because maybe say last year I held the meeting on 1st of January. Now I have to hold the meeting on 30th of April. So due to lockdown I am unable to hold this meeting. तो गवर्नमेंट ने ये जो 120 days है इसको another 60 days से extend कर दिया. मतलब now the gap between 2 meetings can be, instead of 120 days, 180 days. Therefore, say I have held a meeting on 1st of January. Now I can jolly well hold this meeting till 30th of June. And I presume, again, if things go bad, the way it is happening now, again government may give for further relaxation. And this benefit is extended till 2 quarters, till 30th September. मतलब अगर हम 30th September तक कोई board meeting hold करते हैं, then the gap between 2 meetings can be, instead of 120 days, 180 days. Anything stretching beyond 30th September, then the gap of 120 days has to be maintained. But अभी from April to September 2 quarter के लिए इन्होंने ये extra 60 days का relaxation दिया है. Now next we come to company's auditor report CARO 2020. It's very interesting. You see, the government said when it came out with CARO 2020, in exercise of the powers conferred under section 143(11) of the Companies Act 2013, and in supersession of notification earlier issued, that is CARO 2016, the central government makes this order Companies Order 2020. Para 2 में बोला कि this order will be applicable for financial years commencing from 1st April 2019. That is, it will apply to financial year 1920 and subsequent years. So now with this circular,
Caro 2020 has come in for 1920. Caro 16 has gone. Now, we all know when the finance minister in the first address to the media post COVID-19 on the number of measures relaxation, she also said that this Caro will be applicable for 2021. This is a great relief to all of us, I must say, because I am also a part of a group which is drawing guidance note on Caro. Caro 2020 is an onerous responsibility on the chartered accountants, and I don't know even in 2021 when we will have to comply, how will we comply, because there is a large number of issues in Caro 2020. Much has been put on the responsibility of the practitioners to report upon, but now they have said that this Caro 2020 will be applicable for 2021. Now the question arises, what happens for 1920? Do we have any Caro? Because this notification, when it came, it said that it will be effective from the date it is published in the official gazette. So Caro 2020 is already there in the official gazette. This has been issued in exercise of the powers and in supersession of Caro 16. So it's not that Caro 2020 is not there. The applicability has been extended by 1 year. Just 2 days ago, Infosys had come out with its annual results. What we found that Infosys has given a report on Caro. I think there is some technical lacuna here. One can technically argue that Caro 16 is not applicable, but yes, this may not be the intention of the legislature. Yesterday, I was interacting with some officials of MC on this particular aspect only, but they were also of the view that don't go by the literal interpretation of the law. Caro 2020 was set to replace Caro 16. Now, when Caro 2020 has been deferred by 1 year, you have to comply with Caro 16. So, be as it may, this is the position as in relation to Caro. Now, we all know that listed companies are required to appoint independent directors, and these independent directors are required to hold one meeting of their own without the presence of the management, without the presence of the whole-time managing and other non-executive directors. So these independent directors are required to hold a meeting of their own. Every year, one meeting minimum is required. Now, in view of this COVID-19, maybe many of the companies may not have been able to hold these independent director meeting. Therefore, they say that even if you have failed to hold this independent director meeting for 1920, it does not, you will not be doing any offense. And this for this year, this holding of an independent director meeting is dispensed away. Now, there is another relaxation in relation to companies which accept public deposits. We all know this is not much of importance for private companies, but this is importance for public companies, because eligible public companies, we all know, are allowed to accept deposits from the public. Now, what they say that those companies which are accept deposits, what they are required to do, to the extent of the amount of deposit maturing in a particular financial year, 20% of that shall be kept in a separate deposit reserve account by 30th of April. Let us say a company has accepted deposits of 200 crores in the past, and in financial year 2021, out of this 500 crores, 100 crores was due for redemption on different times of the year. Now, what they say, out of this 100 crores, at least 20 crores, that is 20% of the maturity amount for financial year 2021, you have to keep in a separate deposit reserve account within 30th April. Now, again, in view of COVID, there is a difficulty in maintaining this deposit reserve account. So they have extended this period from 30th April to 30th June. And similarly, in respect of companies, certain eligible companies which are allowed to issue debentures, certain types of debentures, again, they are required to either invest in specified securities or create a deposit account for redemption of debentures. And again, that is 15%, and the due date is 30th April. Again, they have extended this by another 2 months, that even for debentures, which you are required to maintain in a separate account, the 15% of the debentures maturing, instead of 30th April, you can maintain this till 30th June. So again, there is a relaxation. Now, again, there is a relaxation for newly incorporated companies. You all know that public companies or private companies, post incorporation, they have also to obtain a certificate of commencement of business. That is mandatory now. So what is the law? A company cannot exercise borrowing powers
A company cannot commence business or company cannot exercise borrowing powers until it files with the registrar a declaration to the effect that the subscribers who had committed the amount to be taken on subscription on subscribers to the memorandum have paid the amount they have committed, and the company has filed a declaration of the registered office. Once the company has filed this form, that is this form, then the registrar will issue a certificate of commencement. The timeline is within 180 days from incorporation. मतलब कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 180 के दिन के अंदर अंडर सेक्शन 10 कैपिटल ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिक्विजिट फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट दे हैव सेड दैट कि ये 180 डेज का जो पीरियड है, आई एम एक्सटेंडिंग इट बाय अनदर 180 डेज. तो 180 प्लस 180 360 दिन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बट आई टेल यू दिस सर्कुलर हैड कम ऑन 24th of March. तो जो कंपनी का 180 डेज ऑलरेडी 24th मार्च के पहले एक्सपायर हो गया है, द बेनिफिट ऑफ दिस सर्कुलर शुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज कंपनीज. बट अगर कोई कंपनी है जिसका 24th मार्च का पीरियड एक्सपायर 24th मार्च के बाद हुआ है, 180 डेज का पीरियड एक्सपायर, देन दोज कंपनीज विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्कुलर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट आइटम. ऑल कंपनीज, we all know either it is a private or a public company, उसमें 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में चाहिए, मिनिमम 3 पब्लिक कंपनी में चाहिए. लिस्टेड कंपनी का अलग बोर्ड कंपोजिशन है. Now what is the requirement कि there should be at least 1 resident director, meaning एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा है. तो जैसे अगर मेरे कंपनी में प्राइवेट कंपनी है, if there are 2 directors, one stays throughout the year in India, say for example, and another stays in India for only 90 days, then it is not a compliance of residency requirement. It is a compliance of residency requirement because एक डायरेक्टर तो सारा साल रहा है. Now let us take a situation where मेरे कंपनी में 2 डायरेक्टर है और दोनों डायरेक्टर ही इंडिया में सिर्फ 90 दिन रहे हैं. दोनों डायरेक्टर इंडिया में सिर्फ 90 दिन या 100 दिन या 180 दिन रहे हैं. कोई भी 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा है इस साल 1920 में. So what they have said, even for this financial year 1920, हम ये residency requirement को भी relax करते हैं. Therefore, even if in your company there is no director who has stayed in India for 182 days or more, all directors have stayed in India for less than 182 days, it will be presumed that the residency requirement has been compliant with, or it will not be treated as non-compliance of section 149 subsection 3 of the Companies Act. So this is all about residency requirement of the directors. Now we come to another circular. This is a notification dated 19th March. This is very important because this will concern almost all of us. This is important for all of us. Now we all know कि कंपनी को बोर्ड मीटिंग होल्ड करना पड़ता है और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड मीटिंग होल्ड करना फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आज हम सोचते हैं कि आज कोई कंपनी को बैलेंस शीट से अर्जेंटली से 3rd मई को लॉकडाउन खुल गया. लेट अस थ्योरेटिकली से 3rd मई को लॉकडाउन खुल गया, कंपनी बोला मेरे को तो आप 7 मई को तुरंत मेरा बैलेंस शीट ऑडिटर को बोला बना के दीजिए. ऑडिटर भी बैलेंस शीट बना दिया. अब रहा कि उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. अगेन ये जो खुलेगा ये पूरा का पूरा नहीं खुलेगा, पार्टली खुलेगा. बहुत सारे डायरेक्टर्स आ सकेंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं भी आ सकेंगे बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए. सो अभी क्या है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से कर सकते हो. वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ, वी कैन कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग इन a similar way because it is a mean of audio, it is an audio visual means which is capable of recording. There can be two-way communication. मैं आपको बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ. All is happening. So अभी तक क्या है, कंपनीज एक्ट में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि बोर्ड कैन होल्ड board meetings by audio visual means, but for certain items of business a board cannot hold board meeting by audio visual means or video conferencing. What are those items? Approval of financial statement. बैलेंस शीट अप्रूवल करना है तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग होना पड़ेगा. हाँ, ये हो सकता है कि हमने फिजिकल बोर्ड मीटिंग करा, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में कोरम है, हमारे कंपनी में 10 डायरेक्टर है, हमारा कोरम से 5 है, से थ्योरेटिकली 5 डायरेक्टर का है. 5 डायरेक्टर बोले कि भाई हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करेंगे, दैट इज परमिटेड क्योंकि मीटिंग फिजिकल मीटिंग है. सो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट कमिटी मीटिंग रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
मर्जर्स, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये 5 आइटम ऐसा है जो अंडर प्रेजेंट लॉ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है कि दीज आइटम्स कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड थ्रू बाय बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस. नाउ दे हैव रिलैक्स दिस रिक्वायरमेंट कि 30 जून तक आप ये सब मैटर भी कर सकते हो. व्हाई दे डिड? ऑब्वियसली else had they not done this relaxation, कंपनीज जिसने रिजल्ट डिक्लेयर किया, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, yesterday ACC, nobody could have declared the results because उनको तो बोर्ड मीटिंग करना ही पड़ेगा. And fortunately institute has also given the option of digitally signing the audit report. तो बोर्ड मीटिंग हुआ, ऑडिट रिपोर्ट भी ऑडिटर ने डिजिटलाइज साइन करके दिया. बोर्ड मीटिंग जब हुआ, ऑडियो विजुअल मीन्स से बोर्ड मीटिंग हो गया because we know directors from all across, whether it is in the same city or different city or directors coming from abroad, they will not be able to attend as of now the board meeting. So this relaxation is given and I think 30th June tak ye relaxation presently hai. It may be extended further. 30th June, why it is important? Because abhi government ne the audited listed companies को जो annual financial statement वो देते हैं जो 30th में तक, उसके लिए भी 1 month extension दे दिया है. So it goes parallelly, चूंकि उनको 1 month extension दे दिया है, and having regard to the present situation till 30th June, board can conduct meeting through video conference or audio visual means for approval for taking through consideration these five items also. A question arises कि approval of financial statement, prospectus तो जरूरी है, but merger, demerger, acquisition, takeover क्यों किया? Why was it necessity? It was necessity because a lot is going to happen now because many companies are available cheap. Many companies will obviously try to thwart any takeover. बहुत सारा अभी next 2 months में disruptions in financial world होंगे. Many companies may need to consider merger, demerger, acquisition. So that is why government says again, since it is a very important item of business concerning board, this also you can transact through audio visual or video conference. अदर देन दैट तब क्या रहा कि क्या ऐसा काम है जो बोर्ड अब नहीं कर सकता है थ्रू ऑडियो विजुअल मींस. द बोर्ड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस. बट जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है इन रिलेशन टू सच टाइप ऑफ मीटिंग्स, प्रिजर्वेशन ऑफ two-way data communication, then recording of these what you call recording of the meetings, and number of factors are there. All those need to be complied with and one can go ahead with such type of board meetings. Now there is one circular issued yesterday only in relation to annual general meeting. This is why this was important because this pertains to companies जिसका financial year end होता है 31st December को. So those follow calendar year January to December may not be of much interest to us, but just for the sake of knowledge कि सब कंपनी को हमारे को पता है कि within 6 months from the end of the financial year, other than the first financial year, AGM hold करना पड़ता है. Therefore normally on 30th September हमको hold करना है, plus within 6 months from the end of financial year, and the gap between two AGM cannot be more than 15 months. Therefore जो हमारी कंपनीज है जो नॉर्मली हम जो ऑडिट करते हैं जिसका अप्रैल टू फाइनेंस मार्च है, उसके पास अभी तक 30 सितंबर टाइम है, उसके लिए ये सर्कुलर नहीं है. तो ये सर्कुलर किसके लिए? जिसका दिसंबर कैलेंडर ईयर है. जो दिसंबर कैलेंडर ईयर एंड होता है उसका ड्यू डेट फॉर होल्डिंग जनरल मीटिंग इज 30th June. Now 30th June is a very difficult situation as of now for holding general meeting. तो उन सब कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने another 3 months का रिलैक्सेशन किया है. You can hold meeting till 30th of September and there will be no violation of section 96. Now government has come out with two circulars, circular number 14 and circular number 17 in relation to passing of ordinary resolutions and special resolutions. ये बहुत important है. अब रहा कि हमारे को बोर्ड मीटिंग करना है. लेट अस टेक बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड सम लाइन आइटम्स जो हमको साइमल्टेनियसली करना है. से हमारे को बोर्ड मीटिंग करना है टुडे. क्यों हमको बोर्ड मीटिंग करना है? क्योंकि मेरा बैंक का लिमिट एक्सपायर हो रहा है. बैंक ने कहा कि आपका हमको रिन्यूअल करना है and I cannot extend the renewal and say theoretically the limit expired in the month of March or even prior to March. Now there cannot be a substantial delay in renewal because if there is a substantial delay beyond a particular point of time in renewal, then the account can become technically an NPA. So बैंक बोला भाई हमको आपका अकाउंट को रिन्यू करना बहुत जरूरी है. There may be one instance. Another instance may be
कि आई एम अ पब्लिक कंपनी, मेरे को पैसा चाहिए बियॉन्ड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम। मेरा लिमिट पहले 10 करोड़ था, अभी मेरे को 20 करोड़ चाहिए, मेरे को अर्जेंट बोरिंग जरूरत है बिकॉज अभी कोविड है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे को करना। तीसरा सिचुएशन, मेरी एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने आज तक अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट अभी क्या किया हमने हमारे पास जो लिक्विड था वो हम देख रहे हैं अभी बिजनेस में तो डिप्लॉय हो नहीं सकता है। तो जब डिप्लॉय नहीं हो सकता है तो हम एक तो बोर्ड मीटिंग करके म्यूचुअल फंड या एफडी में करते हैं। अब जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमारे को बोलेगा भाई आप बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी दो। सो व्हाट वी कैन डू, लेट अस से हम लोग डायरेक्टर जो है घर के ही लोग हैं, तो हम घर में एक बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। जो मीटिंग का फॉर्मेलिटी है, नोटिस एजेंडा, वो हमने घर में दे दिया, घर में मीटिंग किया, फिजिकल मीटिंग किया और डायरेक्ट और बैंक को वो रेजोल्यूशन का कॉपी दे दिया। अब हो सकता है हम सेम हाउस में ही हो, बिल्डिंग में ही हो, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म रखा, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ वायलेशन। अगर 2 तल्ला और 3 तल्ला में 2 फैमिली रहता है और 3 तल्ला से 2 तल्ला मीटिंग के लिए आ गया, आई डोंट थिंक देयर इज अ वायलेशन। सेम बिल्डिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग रहा, लोग आए और लोग आके मीटिंग कर लिए, तो दैट इज पॉसिबल। नाउ से somebody says in North Calcutta, somebody says in South Calcutta, somebody says in Eastern part, तो अब वो क्या होगा? तो ठीक है, वी डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम मीटिंग किए तो हमको नोटिस देना पड़ेगा। अब हम नोटिस बाय पोस्ट तो भेज नहीं सकते हैं, अभी किसको बाय पोस्ट भेजेंगे? तो हमने नोटिस बाय ईमेल सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया। नोटिस बाय ईमेल डायरेक्टर को भेजा, उसमें नोटिस के साथ एजेंडा भेजा, मीटिंग हो गया। अब रहा कि से फॉर एग्जांपल लेट अस से हमने व्यूज एक्सचेंज का ये बोर्ड मीटिंग किया, से व्यूज एक्सचेंज इज अ कंपनी, तो नवीन कहीं पे है, सरोज जी कहीं पे है, झवर जी कहीं पे है, मैं कहीं पे हूँ, से हम लोग 4 कंपनी के डायरेक्टर है, चारों ने एक मीटिंग किया। तो नवीन टेक्स द इनिशिएटिव, नवीन ने बोर्ड मीटिंग के लिए सबको नोटिस भेजा कि बोर्ड मीटिंग विल बी कंडक्टेड फॉर 1 2 3 4 मैटर्स। नाउ उसमें एक ऐसे एक बैंक का जो लोन लेना है उसका रिन्यूअल का रेजोल्यूशन है, एक इन्वेस्टमेंट का रेजोल्यूशन है। अब रहा, उसने सबको नोटिस भी भेज दिया बाय मेल से, एजेंडा भी भेज दिया साइड में मेल से। नाउ व्हाट हैपेंस? सो हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, इसने एक टाइम फिक्स किया जूम में या और कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी में, हम लोग सब अटेंड किए वहां पे। और से नवीन इज द चेयरमैन, तो नवीन चेयरमैन हुआ, नवीन वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो अभी हमने भी उनको कॉमन कंसेंट से चेयरमैन बना लिया। और उन्होंने एक एक करके आइटम्स डिस्कस किया। उन्होंने देखा कोरम है, हाँ हमारे 4 डायरेक्टर है, चारों प्रेजेंट है, तो चलो कोरम है। एक एक आइटम डिस्कशन हुआ। आइटम डिस्कशन होने के बाद हम लोग कंक्लूजन पे आ गए, वोटिंग हुआ। हर वोट में बाय बोर्ड मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स होता है, तो उन्होंने देख लिया, नवीन ने देख लिया भाई कौन कौन फॉर है, कौन कौन अगेंस्ट है। इस तरह से इन्होंने सारा का सारा रिकॉर्डिंग कर लिया। दिस मीटिंग इज आल्सो रिकॉर्डेड एंड इसका रिकॉर्डिंग इज आल्सो स्टोर्ड एंड other things which are there relating to this recording of the meeting, two-way communication, all these are complied with. अब क्वेश्चन आता है ये मीटिंग कहाँ हुआ, ये मीटिंग किस जगह हुआ? तो जब नवीन नोटिस भेजेगा मीटिंग का, नोटिस इज बीइंग given that the first board meeting of say Views Exchange Private Limited will be held at which place? तो there can be 2 places. ये मीटिंग तो कहीं फिजिकली हो नहीं रही है, तो वन व्यू कैन बी टेकन, जो चेयरमैन का घर है वही व्यू, वही प्लेस ऑफ मीटिंग हो जाए। और दूसरा व्यू ये है कि ये मीटिंग तो हुआ नहीं, तो दैट इज बीइंग हेल्ड एट क्लाउड, तो दैट इज द केस ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग। तो हमने टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया। अब राज ये मीटिंग हो गया, नवीन ने सारे इस मिनट्स का सारा ये मिनट्स पूरा बना लिया। अब नियम है कि विद इन 15 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मिनट्स ड्राफ्ट मिनट्स भेजना है। तो नवीन ने मिनट्स बनाया, ड्राफ्ट बना के सब डायरेक्टर्स को भेज दिया। अब डायरेक्टर्स को जो कमेंट देना था उन्होंने कमेंट दे दिया। फिर नियम है कि जब डायरेक्टर्स का कमेंट अगर आ गया तो ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर कमेंट नहीं आया तो उसके देयर आफ्टर वो फाइनल करेगा मिनट्स और सबको साइंड कॉपी ऑफ मिनट्स भेजेगा। नाउ अब नवीन के पास हो सकता है प्रिंटर नहीं हो घर में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्रिंटर नहीं हो। अब हो सकता है कि say instead of Naveen, the meeting was conducted by Saroj ji, but the chairman is Naveen. तो अब सरोज जी ने नवीन को मिनट्स भेज दिया, मिनट्स फाइनल हो गया, बट एंड सरोज जी के पास प्रिंटर भी है, तो सरोज जी ने प्रिंट भी कर लिया। अब साइन कौन करेगा? नवीन कैन नॉट गो टू सरोज जी हाउस टू साइन द मिनट्स। तब इस सिचुएशन में हम इस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कैसे करेंगे कि
आफ्टर द मीटिंग आपको एक साइंड कॉपी मिनट सब डायरेक्टर को भेजना पड़ता है, तो ये तो कंप्लायंस हो नहीं सकता है। तो व्हाट ही कैन ऑल डू, अनसाइंड मिनट जो है थ्रू मेल कि दिस इज द फाइनल मिनट्स, वो सारा का सारा बोर्ड मेंबर को भेज दिया। एंड वंस द लॉकडाउन ओपन्स, सरोज जी ने ऑफिस में नवीन को हार्ड कॉपी दिया, नवीन साइंस दैट एंड अगेन सेंड्स दिस साइंड कॉपी ऑफ मिनट्स टू ऑल बोर्ड मेंबर्स। जो पहले भेजा था एविडेंस उसका निकाल के रिकॉर्ड के लिए रख। वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जब कुछ करेंगे तो बहुत काम ऐसा होगा हम नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ सुपर व्हाट इज कॉल्ड अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो लॉ कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऑल्दो कोई बोलेगा भाई ये तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एसएस ब्रीच हो गया, बट आप बताओ हम कैसे करें। अगर हमको करना है तो सरोज जी को नवीन का घर जाना पड़ेगा, उससे साइन कराना पड़ेगा, देन देयर इज अगेन अ वायलेशन ऑफ लॉ, बिकॉज पीएम का ऑर्डर है कि भैया आप घर से निकल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो ही ऑब्वियसली कैन नॉट ट्रेवल एंड इट इज नॉट एन एसेंशियल सर्विस। कि सरोज जी ने कहा कि साइनिंग ऑफ मिनट्स इज एसेंशियल सर्विस, तो हम जाके साइन करा ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक और प्रॉब्लम आएगा कि जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है वी हैव टू गिव डिक्लेरेशन MBP1 DIR 8, वो कैसे देंगे, उसका भी एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सब अपना अपना घर में बनाए, या से सरोज जी ने या नवीन ने सब डायरेक्टर्स को बना के भेज दिया, उन्होंने उसको साइन किया। अब रहा प्रिंट कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। अगर प्रिंटर है तो प्रिंट करके भेज देंगे, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट करके नहीं भेज सकते हैं। नंबर 2, डायरेक्टर बोलेंगे आज के दिन मेरे को तो खुद को पता नहीं है कि भाई मेरा MBP1 कैसे भरना है, किस किस कंपनी में डायरेक्टर हूँ ये तो मेरे को MCA से पता चल जाएगा, बट मेरा हर कंपनी में क्या होल्डिंग है ये मेरे को पता नहीं है। माइंड में तो सबके रहता नहीं है, क्योंकि MBP1 में आपको अपना भी होल्डिंग देना है मोर देन 2%, जिसमें आपके रिलेटिव्स है उसको भी देना है, तो भाई मेरे को तो सब सारा याद नहीं है, तो पॉसिबल है। देन व्हाट हैपन, आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में नहीं लेंगे, जो डायरेक्टर दे सकता है वो दे देगा, जो डायरेक्टर नहीं दे सकता है वो लिख देगा कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आ रहा है इस मीटिंग में which requires approval and the director is a related party or an interested director, obviously he will make a statement, give a disclosure कि भाई ये जो कंपनी है इसमें मेरा इंटरेस्ट है। अगर ये नहीं करता है then there is a violation। वो उस समय ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरे को याद नहीं था इस कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ, वो नहीं हो सकता, बिकॉज then 184 to 188 will be violated। सो ये हुआ मोरलेस बोर्ड मीटिंग। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डर मीटिंग के। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पहला हम शेयर होल्डर मीटिंग कैसे कर सकते हैं, हम क्या ऑडियो विजुअल मीन से शेयर मीटिंग होल्डर मीटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे पास दो तरह का शेयर होल्डर मीटिंग है, वन इज एनुअल जनरल मीटिंग, वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग अभी छोड़ देते हैं बिकॉज वो सितंबर तक करना है, तो उसके बारे में कोई भी डिस्कशन विल बी वेरी वेरी थ्योरेटिकल, एंड गवर्नमेंट भी अभी उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, नहीं कोई इसके लिए क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर लाया, तो लेट अस फॉरगेट एनुअल जनरल मीटिंग। बट यस, एनुअल जनरल मीटिंग अगर हमको करना है तो आज हम बैठ के घर में भी कर सकते हैं अगर हमारे घर में सारे शेयर होल्डर है, बट उसमें टेक्निकल ब्रीच है। फॉर एनुअल जनरल मीटिंग एंड EGM आपको ऑडिटर को भी नोटिस देना पड़ता है। अब आप ऑडिटर को नोटिस कहाँ का देंगे, अगर आप घर में होल्ड कर लेंगे तो आप उसको तो बोल नहीं सकते हैं भाई तुम घर पे आओ, तो डायरेक्टर तो वो ऑडिटर तो बोल देगा भाई मैं तो घर आपके आ नहीं सकता, क्योंकि लॉ में ऐसा है नोटिसेस ऑफ ऑल जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू द ऑडिटर्स, तो ऑडिटर को हम दे नहीं सकते हैं। जनरल मीटिंग है हमको डायरेक्टर को भी नोटिस देना होगा, डायरेक्टर भी हो सकता है सब नहीं आ सकता है, एज्यूमिंग डायरेक्टर मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, सो देयर इज सम डिफिकल्टी। अभी क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अभी तक कैसे होता है, इट इज अ फिजिकल मीटिंग। वन मीटिंग यू कैन डू बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वन मीटिंग यू कैन डू बाय पोस्टल बैलेट। ना हमको पता है कि लिस्टेड कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर होल्डिंग फिजिकल मीटिंग, क्योंकि फिजिकल मीटिंग तो जरूरी है। तो जो फिजिकल मीटिंग होता है उसमें भी वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग्स या वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट रहता है, जहां जो 108 और 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो भी प्रोवाइड करता है। बट अब स्थिति ऐसा आ रही है कि लेट अस नॉट टॉक ऑफ लिस्टेड कंपनीज बिकॉज लिस्टेड कंपनीज का उन्होंने प्रोसीजर दिया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेट अस टॉक ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनी को मीटिंग करना है, तब क्या होगा, अब रहा मीटिंग का नोटिस किसको भेजना है, हमको शेयर होल्डर को भेजना है। अब हम मीटिंग का नोटिस शेयर होल्डर को कैसे भेजें, हम तो चिट्ठी भेज नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफिकल्टी इन सेंडिंग द लेटर, तो बोला सबको मेल से नोटिस भेजो। तो हमने सबको मेल से नोटिस भेजा कि भैया EGM इस तारीख को है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल में। लेकिन मेरे पास ऐसा हो सकता है बहुत लोगों का फोन का मेल आईडी भी नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे मेल आईडी लेंगे, बोलेंगे भैया आप अपना मेरे को मेल आईडी, ये कंपनी का मेल आईडी है, आप इस कंपनी में का मेल आईडी में से viewsexchange@org.in मेरा मेल आईडी है, आप इस
मेल आईडी में मेल कर दीजिए आपका मेल आईडी। तो सरोज जी ने व्यूज एक्सचेंज को मेल कर दिया कि मेरा मेल आईडी saroj@gmail.com है, आप इसमें मेरे को नोटिस भेजो। तो ठीक है। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ये हो गया तो मेरे को सारा शेयर होल्डर कॉन्टेक्ट हो गए, सारे शेयर होल्डर्स मेरे को मिल गए, हमने सबको नोटिस भेज दिया, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो भी कानून है हम फॉलो करेंगे। अब रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास इतने सारे शेयर होल्डर है, हम सबको भेज ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत जन का मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तब हम क्या करेंगे? अगर नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप दो वर्नाकुलर न्यूज, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश में, जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आता है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने जो ऐप में आता है ना हम लोग को पेपर, न्यूज़पेपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आता है, फिजिकल प्रिंट भी करता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी जो न्यूज़पेपर अपना एडिशन छापता है, उस पेपर में आप एडवर्टीजमेंट कीजिए कि ये मीटिंग होगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है ईजीएम का। नाउ अब कोई को हो सकता है ऐसा कि उसके बावजूद भी कोई नहीं देखे, बोल सकता है भाई हम तो देखे ही नहीं, हम तो 15% शेयर होल्डर थे, मीटिंग करना था, आपने तो मीटिंग किया, आपने भले ही पेपर में नहीं दिया लेकिन मैं तो नहीं देखा। देन देयर इज नो एक्सक्यूज, बिकॉज लॉ बोला आपको ये कंप्लाई करना है, हमने पूरा लॉ का कंप्लाई किया, उसके तहत हमने मीटिंग की। अब मीटिंग हुई, अब उसमें है कि मेरे शेयर होल्डर 10 है, 20 है, 40 है, देयर इज नो प्रॉब्लम। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट शो ऑफ हैंड से हो जाएगा या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विल बी द चेयरमैन। अब जो मीटिंग्स होंगे, अगर हमारे मेंबर्स 5, 10, 15, आई प्रिज्यूम प्राइवेट कंपनीज में उतने होते हैं, तो वहां पे शो ऑफ हैंड्स हो जाएंगे, तो चेयरमैन देख लेगा भाई किसका कितना हाथ उठा है, तो उसके हिसाब से कर लेगा। कल को कोई वॉरिंग पार्टी है, मान लो एक फैमिली में ऐसा भी हो सकता है, दो वॉरिंग सेगमेंट है, तो वो बोलेगा नहीं हमको तो पोल चाहिए, तो चेयरमैन बोलेगा ठीक है भाई पोल लो। तो जब पोल लेगा रेजोल्यूशन पे, तो पोल का डिसीजन कैसे होता है? पोल का डिसीजन तो हाथ उठा के होगा नहीं, तो सबको बोला जाएगा कि भाई ये रेजोल्यूशन है, तो जो फॉर है या जो अगेंस्ट है मेल में जवाब दो। तो बंदा अभी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग में बैठे बैठे उसका मेल में जवाब देगा कि हम फॉर द रेजोल्यूशन है या हम अगेंस्ट द रेजोल्यूशन है। चेयरमैन अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है तो वो उसी समय देख सकता है, देख के रिजल्ट बता देगा। अगर बहुत सारे शेयर होल्डर है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वो बोलेगा अभी नहीं, हम ये तो रिजल्ट को बाद में बताएंगे। तो दिस इज हाउ एजीएम गोज। बट इसमें भी बोला है कि हम कौन सा मैटर ईजीएम में नहीं डील कर सकते जहां हमको फिजिकल प्रेजेंस किसी का जरूरत है। हम अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते हैं, इस खैर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल्स तो आ ही नहीं सकता है, मतलब हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं विच आर ordinary items of business or which requires physical presence of the member, physical presence of the member such as कि कल को हमको डायरेक्टर को हटाना है, तब हम ऑडियो विजुअल मीन से नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर को बोलना है आके कि भाई हमको सरोज जी या नवीन जी हटाना चाहते हैं, तो मेरे को ये मेरे बारे में बोलना है। तो शेयर होल्डर भी सुनेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हम वोट फेवर में करें या अगेंस्ट में करें। ऑडिटर है, ऑडिटर का रिमूवल है, अब मुझे कोई ऑडिटर से हटाना चाहता है, मैं बोलूंगा भाई ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऑडिटर हैज अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग, अ स्पेशल नोटिस हैज बीन गिवन टू द इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द ऑडिटर, तो वो उसका भी हटाने का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो अभी टिल 30th जून items which require physical presence of those persons, affected persons cannot be transacted. Other than that, अगर हमको से कोई 181A का, 181C का, 181, जैसे कई जन बोलेंगे हमको डोनेशन देना है, अभी हमको डोनेशन देना है पीएम केयर्स फंड में देना है, अब वो डोनेशन का लिमिट है 5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, जो अगर उससे बियॉन्ड देना है तो जनरल मीटिंग, तो ठीक है, we call a general meeting, board meeting, we call a general meeting of the shareholders, seek approval by audio conferencing and go well ahead. But अभी ये है कि आप जनरल मीटिंग तभी कीजिए when it is a of essence requirement. अब कोई ऐसा सिचुएशन सकते हैं, कोई बोलेगा भाई लुक वी आर डायरेक्टर्स, हम लोग 4 आदमी हैं, वी आर सीनियर पर्सन, हमसे ये सब झमेला नहीं होगा ये, बट हमको ये कार्यक्रम भी करना है। आज मेरे को लोन लेना है, लोन इज एन एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड फ्री एंड रिजर्व्स, मेरे को 181A का पास करना है, मेरे को डोनेशन देना है, मेरे को 181 का पास करना है, बट मैं ये सब भाई अभी नहीं कर सकता हूँ। सब जनरल मीटिंग वगैरह कौन मेल से भेजेगा, कौन सब वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, ये सब पॉसिबल नहीं। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगेन भाई कुछ हम आई कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट आई एम नॉट एबल टू डू, क्योंकि बोल सकता है कि भाई ये सब जो काम करेगा ये तो कंपनी सेक्रेटरी, अब कंपनी सेक्रेटरी भी लॉकडाउन में है, ही इज नॉट वेल सम रीजन और द अदर, तो वो भी कंडक्ट नहीं कर सकता है मीटिंग। देन
वी गो अहेड एंड डू द ट्रांजेक्शन। हमको जो करना है हम आज कर लिए। करने के बाद जिस दिन लॉकडाउन खुला हमने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल एक शेयर होल्डर से ले लिया, एंड दिस विल रिलेट गो बैक फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन कि भाई हम 5% का अप्रूवल चाहते हैं डोनेशन का, प्रॉफिट का, बट ये 5% हम 10 करोड़ देना चाहते हैं, बट ये 10 करोड़ ब्रीचेस 5%, तो शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए। और हमने ये जो पास्ट में भी ट्रांजेक्शन कर लिया, यू रेटिफाई दैट ऑल्सो। तो हम पोस्ट फैक्टो शेयर होल्डर मीटिंग करके रेटिफिकेशन कर लेंगे, एंड दिस रेटिफिकेशन विल गो बैक टू द डेट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। नाउ कोई बोलेगा भाई ये तो लॉ में तो प्रायर कंसेंट लिखा था। Even if it is a prior consent, but if I am able to ratify what has been done, it relates to the date of the original transaction. Plus, in these situations, in this type of situation, no court of law will take a literal view of the law. सब देखेगा कि भाई इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इसने जो किया, कोई अनबोनाफाइड जो काम किया सब बोनाफाइड है ना, कोई अनबोनाफाइड तो नहीं है ना, नॉन बोनाफाइड तो नहीं है ना। देयरफॉर इफ इट इज डन, तो देयरफॉर इट इज बेस्ट कि अगर आपको ये डिफिकल्टी हो रही है, अगर घर में ही 2-3 शेयर होल्डर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काम खत्म हो गया। अगर हमारा से कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन चाहिए, से मेरे कंपनी में कॉर्पोरेट शेयर होल्डर थे, तो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है तो उसका भी मिनट्स का कॉपी चाहिए ऑथराइजेशन का। हो सकता है हमने ऑलरेडी पहले से ऑथराइज कर रखा है, इसे देयर इज अ कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें नवीन मिसेस नवीन शेयर होल्डर है और 2 कंपनी और है, और वो 2 कंपनी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी नवीन ही बने हुए हैं, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन नवीन प्रेजेंट दिखा सकता है अपने आप को, बिकॉज ही इज एन ऑलरेडी एन अपॉइंटेड एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट दोज कंपनीज एंड ही कैन जॉली वेल। तो ये मैंने आपको एक समरी में बताया, इट इज इन मच अ लिटिल मोर डिटेल फॉर लिस्टेड कंपनीज। आई हैव डिस्कस्ड नॉन लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। there is some more requirement, like I said, two-way conferencing की हम आपको सुन सके, आप हमको सुन सके। अगर 1000 शेयर होल्डर से ज्यादा हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी में 1000 तो होगा नहीं, आउटर मोस्ट 200 ही शेयर होल्डर है। पोल कैसे लेना है, वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स कैसे है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन डीप, बट मोर और लेस जो फ्रेमवर्क है वो यही फ्रेमवर्क है। So important is if you are not able to conduct it properly, better avoid, do the work you want to do and take post fact approval. One thing is more important कि अगर आप इस तरह से मीटिंग करते हैं, then ये जो भी resolutions आपका पास हुआ, you have to file with ROC and you have to also give a declaration कि आपने भाई जो सर्कुलर नंबर 14 और 17 किया था, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ था in relation to this I have complied with. तो ये this is another important. तो आप MGT 14 फाइल करेंगे, से MGT अभी आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो आप MGT 14 फाइल करेंगे, तो one MGT 14 is for special resolution and another MGT 14 is for passing of the resolution in EGM through video conferencing or audio visual means. तो as of now MGT 14 enabled नहीं है इस ऑप्शन के लिए, मे बी टाइम टू कम गवर्नमेंट ये भी इनेबल कर देगा फॉर there must be a separate what you call line item, separate item for stating that these AGM have been conducted through e-voting or what you call audio visual means, or and then the compliance of circular 14 and 17 whatever is laid down has been complied with. तो हमको MGT 14 में 2 आइटम को करना पड़ेगा। Now we come to the last is the company fresh start scheme. हम जो FAQs है, what I have done, I have made a presentation of what FAQs has been issued by MCA, but इसके पहले हम company fresh start scheme discuss करते हैं, and let us discuss since we are very few in number, let us discuss very practically कि what is company fresh start scheme, and I give by examples, और उसके बाद हम एक एक केस स्टडी भी लेंगे। हमारी एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनकॉर्पोरेशन के बाद इसने ना कोई बैलेंस शीट बनाया, ना कोई एनुअल रिटर्न बनाया, ना कोई ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया, ठीक है। इस कंपनी अब इसने सिर्फ क्या किया, इसने DIR 3 KYC और e-फॉर्म एक्टिव किया था ना। बैलेंस शीट बना लिया, हम ये नहीं बोल सकते बैलेंस शीट नहीं बनाया, कंपनी ने बैलेंस शीट बना लिया, कंपनी ने एनुअल रिटर्न बना लिया। तो मार्च 18, 19, 20 तीनों का उसने बैलेंस शीट, 18 और 19 का, अभी तो 20 तो दे रही है, 18 और 19 का बैलेंस शीट नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं फाइल किया। अब ये क्या बोल रहा है स्कीम, जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम है, ये बोल रहा है कि आपका कंपनी एक्टिव है, हाँ मेरा कंपनी एक्टिव है, स्ट्राइक ऑफ नहीं है, नहीं स्ट्राइक ऑफ नहीं है, तो आपने ये सब फॉर्म नहीं फाइल किया, नहीं किया है,
अभी आप फाइल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, हमको एडिशनल फीस बहुत देना पड़ेगा, प्लस चूंकि हमने फाइल नहीं किया है तो हमारे को पेनल्टी लगेगा, प्लस हमने जो फाइल नहीं किया तो हमारे को प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ये स्कीम बोल रहा है कि आपने जो फॉर्म नहीं फाइल किया है, हम आपको एक 76 फॉर्म्स का इलस्ट्रेटिव लिस्ट दे रहे हैं अभी, आपने अगर ये सब फॉर्म फाइल नहीं किया है और आपका कंपनी एक्टिव है, आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 20 तक फाइल कर दीजिए। आपको फाइल करने के लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगा। नॉर्मल फीस अगर 500 है तो आपको 500 ही लगेगा। अगर मेरे को 12 टाइम एडिशनल फीस लगता, वो एडिशनल फीस नहीं लगेगा। आप ये फॉर्म फाइल कर दीजिए। जितना फॉर्म फाइल करना है आप सारा का सारा पास्ट फॉर्म फाइल कर दीजिए। ऑडिटर का एडीटी 1 नहीं फाइल किया था, वो भी अभी आप कर दीजिए। वो करने के बाद, ये आपको मैं 6 महीना का टाइम दे रहा हूँ, ये करने के बाद हम 1 अक्टूबर को एक CFSS फॉर्म लाएंगे। उस फॉर्म में आप बताइएगा, और अभी आप जब फाइल करेंगे तो आपको कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगा। अब ये एक मैटर खत्म हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद हम एक और नया फॉर्म लाएंगे। अभी तो हमको जो फॉर्म फाइल करना है वो नॉर्मल में AOC 4, AOC CFS, MGT 7 जो भी हमको फाइल करना है हम सब फॉर्म फाइल कर दिए। उसके बाद 1 अक्टूबर हम एक इम्यूनिटी फॉर्म लाएंगे। CFSS फॉर्म बोल के एक फॉर्म आएगा, वो 1 अक्टूबर के बाद ही पोर्टल में आएगा। आप वो फॉर्म भरिए। वो फॉर्म क्या है, उस फॉर्म में हम आपको पूछेंगे आप किस किस फॉर्म जो आप अप्रैल से लेके सितंबर में फाइल किए हैं उसका आप इम्यूनिटी चाहते हैं। तो आप बोले हमने भैया इस समय मार्च 18 और मार्च 19 का AOC 4 फाइल किया, इसका SRN नंबर ये है। हमने MGT 7 फाइल किया, इसका SRN नंबर ये है। हमने ADT 1 फाइल किया, इसका SRN नंबर ये है। हमने अगर और भी कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसमें वो फाइल किया, उसका SRN ये नंबर है। कल के आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया, ये ROC एग्जामिन करेगा। इस फॉर्म को फाइल करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये फॉर्म आप फाइल करेंगे, देन ROC इस फॉर्म को देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपने जो बोला है कंटेंट सब सही है, देन ही विल गिव यू एन इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। अब इम्यूनिटी का क्या मतलब है, जो फॉर्म्स को भी आपने फाइल किया है अप्रैल से लेके सितंबर तक, और उसको आप उस CFSS फॉर्म में इम्यूनिटी के लिए आप बोलना चाह रहे हैं, उस फॉर्म के तहत आपको 1 पैसा ना पेनल्टी देना है, ना उस फॉर्म पे कोई प्रोसिक्यूशन होना है। आप एडिशनल फीस तो ऑलरेडी दिए ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अब हम चाह रहे हैं आप वापस से चलिए, अच्छा शुरुआत कीजिए। जो गलती हुई पास्ट में उसको हम सब भूल जाते हैं, हम आपको ना पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अब उसमें भी एक थोड़ा सा उसने एक राइडर कर दिया। अब बड़ा अच्छा बोला है, बोला देखिए हम आपको ये गलती माफ कर रहे हैं क्योंकि आपने फॉर्म फाइल नहीं किया। तो 500 का जो आपको 6000 रुपया फीस लगेगा वो हम आपसे नहीं ले रहे हैं। हम मान रहे हैं आपकी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी, बट अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है अदर देन नॉन फाइलिंग के लिए, देन यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी ने से फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्लेसमेंट किया, देन प्राइवेट प्लेसमेंट करके उसने मनी रेज किया। अब नियम अभी है कि इफ यू रेज मनी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट यू हैव टू फाइल पास 3 या पास 4 जो भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, आप पहले उसको फाइल कीजिए, उसके बाद ही आप मनी को यूज कर सकते हैं। बिना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करे यू कैन नॉट यूटिलाइज द मनी रेज्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। बट आपने क्या किया, आपने तो फॉर्म फाइल किया ही नहीं। आपने 23-24 मार्च को क्या किया था, पैसा आया था उस समय पैसा ले लिया। अब लेके आप PAS 3 या PAS 4 जो भी रेलिवेंट फॉर्म है अलॉटमेंट का, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया एंड यू हैव यूज्ड द मनी, यू विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन। For non-compliance of law, you will not get the protection. You are only getting the protection for non-filing of form, which you have filed now. वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ का आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब दूसरा सिचुएशन आते हैं। अब आप बोले कि भाई मेरे को 15 फॉर्म फाइल करना था, भाई से मैं तो सब फॉर्म नहीं फाइल कर पा रहा हूँ, मैं 8 ही फॉर्म फाइल कर पा रहा हूँ, अब 7 का क्या होगा। आप जितना फॉर्म फाइल कर देंगे उसके लिए आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। आप जो फॉर्म फाइल नहीं करेंगे उसके लिए आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा, अब ये नहीं देखते कि ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि नहीं, थ्योरेटिकली ऐसा सोचते हैं, इसे थ्योरेटिकली कि आपने 6 साल का बैलेंस शीट नहीं फाइल किया, 6 साल का एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया। हम डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन का बात एक बार छोड़ देते हैं। आपने कहा भाई जो पहला 5 साल का है बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस वो तो मैं फाइल कर सकता हूँ अभी, बट 6ठा साल का है वो मेरा ऑडिटर साइन करके दे नहीं रहा है। वो बोल रहा है आपका ऑलरेडी 5 साल का तो फाइल हुआ नहीं है, इसलिए तो मैं आपको 6ठा साल का दूंगा नहीं बैलेंस शीट जब तक पहला 5 साल का फाइल नहीं होगा।
तो आपने वो 5 साल का फाइल कर दिया इस स्कीम के अंदर, उसके लिए आपको इम्यूनिटी मिल जाएगा, बट छठा साल के लिए नहीं मिलेगा इम्यूनिटी, क्योंकि छठा साल का आपने नहीं फाइल किया। अब ऐसा कोई सिचुएशन आया कि किसी ने बोला कि भाई मैं, जो आपने बोला कि 14 से 19 का फाइल कर दो, तो मैं 14, 15, 16 का तो कर सकता हूँ, 17, 18 का नहीं कर सकता हूँ फाइल, 19 का कर सकता हूँ। तो मैं 2 साल का बीच का नहीं कर सकता हूँ, अब बाकी का सारा साल का मैं AOC4 और MGT7 कर सकता हूँ, AOC4 CFS भी कर सकता हूँ। तो भाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लॉ ये बोल रहा है कि भाई अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, हम आपको इम्यूनिटी उसी के लिए देंगे जो आपने फाइन फॉल किया, नंबर 1, और नंबर 2 CFSS में उसको आपने बोला कि बस इस फॉर्म के लिए हमको इम्यूनिटी चाहिए। कल को आपने जो फॉर्म फाइल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने, MCA has also said one thing, भाई you see, you act like a good corporate. Do not do like this, that you file forms for 14, 15, 16, then for 17 you will not file, and again for 18 and 19 you will file. There is something called corporate governance. So you also do your governance better, because you cannot now say that my all balance sheets are prepared, but my balance sheet for 17 is not prepared. Because if your balance sheet for 17 is not prepared, your balance sheet for 18 can also not be prepared. Because once an account is approved and adopted at the AGM, the subsequent accounts cannot be prepared. So do not tell me that crap कि sir 17 का नहीं बना but 18 का बन गया, 19 का बन गया. Please do not say like this. But again there is no bar. अब एक सिचुएशन आते, एक कंपनी है, यही मैंने जैसे बोला कि 14 से 19 तक फाइल नहीं किया हुआ है, अब ये कंपनी से इनएक्टिव हो गया है, इसके डायरेक्टर भी सब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तब हम क्या करें? कंपनी भी इनएक्टिव हो गया है क्योंकि हमने INC फॉर्म एक्टिव नहीं फाइल किया है, अभी ROC ने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है। अब हमारे को चिंता है कि भाई मेरे कंपनी में ऑपरेशन चल रही है बट बैलेंस शीट नहीं फाइल हुई है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया। सो ये स्कीम क्या बोलता है भाई, दिस इज नॉट अ स्कीम फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये स्कीम के तहत हम आपका डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रिमूव कर सकते हैं। तब हम क्या करें? हमारे दोनों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, हमारा ई फॉर्म एक्टिव भी नहीं फाइल हो सकता है, हमारा DIR3 KYC भी नहीं हो सकता है। तो अब जब नहीं हो सकता है तो हम फॉर्म भी नहीं फाइल कर सकेंगे। तब ये बोला स्कीम, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप एक काम कीजिए, आप ROC के पास जाइए, आप ROC को बोलिए कि भाई देखिए मेरा सारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, आप बैक एंड से एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दीजिए। तो वो बैक एंड से डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। जब वो बैक एंड से डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा तो आप फिर एक बोर्ड मीटिंग करके एक दूसरा डायरेक्टर, जनरल बोर्ड मीटिंग करके दूसरा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दीजिए। सब डायरेक्टर का DIR3 KYC फाइल कर दीजिए। इस DIR3 KYC फाइल करने का कोई फीस नहीं है, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमको ई फॉर्म एक्टिव करना है क्योंकि INC 22A बिना वो एक्टिव नॉन कंप्लायंट दिखाएगा, तो हम ई फॉर्म एक्टिव फाइल कर दिए। आज के दिन उसका भी कोई फीस नहीं है, तो चलो फ्री में वो भी फाइल हो गया। वंस बोथ इज डन, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम जाके जितने सारा फॉर्म्स फाइल करना है हम सारा का सारा फॉर्म फाइल कर दिए। एंड when once I file all the forms again, जब 30 सितंबर ओवर हो गया, 1 अक्टूबर को जब वो आया, हम उस जो CFS 2020 जो फॉर्म आएगा, उस CFS 2020 में हम सारा का सारा SRN नंबर और फॉर्म का डिटेल डाल के इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट लेंगे। बट अगर हम उस समय भूल गए कोई फॉर्म डालना, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी फॉर्म हम जिसके लिए इम्यूनिटी चाहते हैं, सारा का सारा उस CFSS फॉर्म में कैप्चर हो जाए। और उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम दिया है। उन्होंने कहा हम आपको 6 महीना देते हैं फाइलिंग के लिए टाइम, फिर हम आपको 6 महीना देते हैं CFSS फॉर्म के लिए फाइल। तो वो भी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 21 तक खुला रहेगा। तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। अब एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि ये जो मेरी कंपनी है, ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, ROC ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। बट हम चाह रहे हैं भाई ये कंपनी में, चलो अब स्कीम भी आ गया है, मेरे को पैसा भी नहीं लगेगा, तो चलो हम नॉर्मल फीस ही लगेगा, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी नहीं है, तो चलो हम इसको रिवाइव करें। तो बोला कि आप पहले जाओ NCLT के पास, पिटीशन फाइल करो, NCLT रिवाइव देगा, ये रिवाइवल का ऑर्डर आ जाएगा। ये रिवाइवल का ऑर्डर आपको 30 सितंबर के पहले ही आना होगा। उस ऑर्डर को आप INC 28 में फाइल करो, आपका कंपनी स्ट्राइक ऑफ से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप DIR3 KYC INC एक्टिव कर दो, उसके बाद आप सारा का सारा फॉर्म फाइल कर दो। बट ये कार्यक्रम 30 सितंबर के पहले होना चाहिए। कल को NCLT का ऑर्डर 30 सितंबर के पहले नहीं आया, कल को आप 30 सितंबर के पहले फॉर्म INC वो NCLT ऑर्डर नहीं फाइल कर सके तो कुछ नहीं होगा। तो जो आपको करना होगा, 30 सितंबर के पहले आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाना है। अब एक सिचुएशन आया कि भाई
मेरी कंपनी मर्ज हो गई है और अब हम क्या करें? तो बोला भाई जो कंपनी मर्ज हो गई है उस पर अप्लाई नहीं करेगा। मर्ज्ड कंपनीज, डीमर्ज्ड कंपनीज ये उस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती है क्योंकि वो तो कंपनी मर्ज हो गई है। फिर आया वेनिशिंग कंपनीज, मतलब वेनिशिंग कंपनीज जो कंपनीज को आरओसी बोल दिया ये वेनिशिंग कंपनी है, उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकता है ये स्कीम। फिर आया ये फॉरेन कंपनीज, तो बोला हाँ फॉरेन कंपनीज पे ये अप्लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका प्रोजेक्ट ऑफिस है वो उस कंपनी पे अप्लाई करेगा। अब आया क्वेश्चन कि भाई हमारा कंपनी को आरओसी ने फाइनल नोटिस स्ट्राइक ऑफ का दे दिया है, तो बोला अगर आरओसी ने भी आपको फाइनल नोटिस स्ट्राइक ऑफ का दे दिया है तो आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। अब आया कि मैंने खुद ही अप्लाई कर दिया है एनसीएलटी में, तो बोला आपने खुद अगर एनसीएलटी में अप्लाई कर दिया है तो भी आप फिर अब आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं है। अब रहा कि इसमें हमारा फॉर्म है ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या तो क्या इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को SH7? बोला ना, चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स और SH7 ऑथराइज्ड कैपिटल उसमें आपको एडिशनल फीस वेवर नहीं मिलेगा। तो कल को हम और वो स्कीम में कवर्ड नहीं है क्योंकि चार्ज रिलेटेड फॉर्म वी ऑल नो देयर इज अ टाइमलाइन फॉर फाइलिंग and it is these are of prime importance especially under IBC laws. So there is no immunity for charge forms, there is no immunity under the scheme for even form SH7 because you all know SH7 अगर डिले होता है तो इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी और एमसीए का उसमें रैशनल है कि भाई ऑथराइज कैपिटल कौन बढ़ाएगा? ऑथराइज कैपिटल वही बढ़ाएगा जिसके पास पैसा होगा, जिसको पैसा चाहिए, तो जिसके पास पैसा है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको हमसे एडिशनल फीस वेवर भी नहीं मांगनी चाहिए। अब रहा कि कल को से आई हैव नॉट फाइल्ड अ फॉर्म, आई हैव नॉट फाइल्ड वन फॉर्म, आई हैड इशूड अ नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ने मेरे को इशू किया नोटिस पेनल्टी का कि भैया आपने ये नहीं फॉर्म किया, इस लॉ के तहत इतना रुपया पेनल्टी है। द एडजुडिकेशन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी हैज आल्सो बीन पास्ड, हमने अपील फाइल कर दिया है रीजनल डायरेक्टर के पास। तब क्या होगा? तो बोला आप इस स्कीम को अवेल फिर भी कर सकते हैं, तो आप जब रीजनल डायरेक्टर का हियरिंग होगा तो आप पहले तो फॉर्म फाइल कर दीजिए, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और रीजनल डायरेक्टर को बताइए जाके कि सर ऐसा ऐसा है, ये पेनल्टी मेरे को लगा था फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म एंड आई हैव अवेल्ड दिस स्कीम, तो प्लीज टेक अ सिंपैथेटिक प्ली। अब एक क्वेश्चन आया कि भाई एनजीटी 14, वी ऑल नो कि एओसी 4 में क्या है, अगर आप ड्यू डेट में नहीं करते हैं तो वो शायद 100 रुपया पर डे का पेनल्टी है, समथिंग लाइक दिस, एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट में। बट एमजीटी 14 के एमजीटी 14 300 दिन के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। हमने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया अभी, इफ मेनी ऑफ अस आर डूइंग विद शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इफ यू आर अ लिमिटेड कंपनी तो आपको अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको फाइल करना पड़ता है एमजीटी 14 में एवरी ईयर। तो अभी क्या है, काफी सारे केसेस हुए जहाँ पे रीजनल डायरेक्टर ने आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि भाई आपने तो एक झूठा डिक्लेरेशन दिया है, क्योंकि उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि 179 100 ऑल रेजोल्यूशंस एज पर 179 हैव बीन फाइल्ड, तो आपने लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड का फाइल नहीं किया, तो हमने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये पिटीशन ही रिजेक्ट कर दिया ना। वो सही किया गलत किया दैट इज अ सेपरेट इशू, बट ये काफी हुआ है। तो व्हाट हैपेंस, तो अब हम एमजीटी 14 कैसे फाइल करें? इट इज बियॉन्ड 300 डेज से हमने कोई अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एवरी ईयर होता है, तो से 17 का 18 का 19 का हमने नहीं फाइल किया एमजीटी 14, देन we need to apply to central government for condonation of delay। तो वो CG1 में एक एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ वो एप्लीकेशन होता है, हम उसमें ग्राउंड्स लिखते हैं क्यों हम नहीं कर सके फाइल, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडोन करता है डिले। अब कंडोन डिले करने के बाद वो ऑर्डर को हम आरओसी में फाइल करते हैं और उस फाइलिंग के बाद हम एमजीटी 14 को फाइल करते हैं ये। तो बोला इस एमजीटी 14 का क्या होगा? तो बोला कि भाई देखिए, वन you be very clear of this scheme, MCA said कि this scheme से हम आपको सिर्फ एडिशनल फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, this scheme is only for non filing of prescribed forms, 76 forms. For this 76 forms we are giving immunity from additional fees, from penalty, from prosecution. Other than this हम आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो कल को आपको एमजीटी 14 बियॉन्ड 300 डेज जो करना था वो आप कीजिए,
करने के बाद आप MGT 14 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बिना किए आप MGT 14 फाइल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें डेट रहेगा कि किस डेट का रेजोल्यूशन है। तो आपको जो बाकी का कार्रवाई करना है वो आप सारा का सारा कार्रवाई कीजिए, उसके बाद ही आप। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये तो हो सकता है, एक सिचुएशन आया कि भाई कोर्ट ऑर्डर आया अमलगमेशन का। अब नॉर्मली क्या है, कोर्ट ऑर्डर में लिखा रहता है अमलगमेशन का या डीमर्जर का कि दिस ऑर्डर हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। अब ये 30 डेज चला गया, तो क्या ये स्कीम में कवर होगा? तो this is not answered by MCA, but what is my view, how can it be covered? Because court ने order दिया है. What is a circular, what is a notification, what is a scheme? So that has been issued by MCA. So nothing can override this court order unless it is passed by parliament. तो अब रहा इसका क्या होगा भाई, चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप इसको स्कीम में अवेल नहीं कर सकते हैं। तब मैं क्या करूं, आप वापस कोर्ट के पास जाइए, वापस कोर्ट को जाके बोलिए कि भाई 30 डेज, चूंकि लॉकडाउन हो गया, हम नहीं कंप्लाई कर सके, तो आप मेरे को एक्सटेंशन ऑफ टाइम दीजिए, एडिशनल टाइम दीजिए। तब क्या होगा, नॉर्मली जब पिटीशन फाइल होगा, हियरिंग होगा, कोर्ट को बताया जाएगा कि कोविड के कारण नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ऑर्डर मिला 15 मार्च को अमलगमेशन का सर्टिफाइड कॉपी, उसके बाद मेरे पास टाइम था 15 अप्रैल तक, बट ड्यू टू दिस हम नहीं फाइल कर सके। अब हमको जब भी मई जून जुलाई में जब भी खुलेगा, हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे फॉर सीकिंग sufficient time extension of time to file, and court will be, I think, quite generous and liberal in giving such type of orders. So this is all about. अब एक सिचुएशन है कि हमको अपील फाइल करना था एडजुडिकेशन का, जो हमने अभी आपको एक पहले बताया आरडी वाला, कि आरओसी ने ऑर्डर पास किया पेनल्टी का, हमको अपील फाइल करना था, बट हम अपील नहीं फाइल किए, एंड दिस ऑर्डर वाज पास्ड आफ्टर 1 मार्च। तो हमारे पास आज भी सफिशिएंट टाइम है। तो ये स्कीम बोलता है इस केस में भी अगर आपने अपील नहीं फाइल किया है तो ये एडिशनल और ये ऑर्डर पास किया और ये ऑर्डर पास किया और इसका अपील का फाइलिंग डेट से 1 मार्च से 31 मई है। तो ऑर्डर पास के बाद अपील करने का भी 60 डेज टाइम रहता है। तो कल को रहा कि ये ऑर्डर पास करने का अपील का टाइम अगर 1 मार्च से 31 मई के बीच में एक्सपायर कर रहा है, हम आपको 120 एडिशनल डेज दे रहे हैं टू फाइल अपील। तो आप पहले फाइल कीजिए अपील, उसके बाद एडजुडिकेशन में जाइए और उधर फॉर्म भी पैरेलली या सब्सिक्वेंट टू आरडी अप्रूवल आप उस फॉर्म को भी फाइल कर दीजिए। नाउ अब रहा कि कल को हम कोई किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, आरडी के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी कोर्ट में चले गए हैं, तो बोला आपको विड्रॉ करना पड़ेगा एंड कॉपी ऑफ विड्रॉल आपको उसमें देना पड़ेगा। अब कल है कि नॉन फाइलिंग के लिए एमसीए ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया। से फॉर एग्जांपल देयर आर सम पास्ट केसेस जहां प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया बट अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। तो जहां ऑर्डर नहीं हुआ है वहां हम क्या करेंगे, हम फॉर्म फाइल करेंगे और फॉर्म फाइल करने के बाद हम इम्यूनिटी का जब फॉर्म फाइल करेंगे तो हम कोर्ट में जाके उसको विड्रॉ भी करेंगे, बोल देंगे हमने फाइल किया एंड आई वांट टू विड्रॉ दिस एप्लीकेशन, सॉरी हम उसको फाइल करेंगे और कोर्ट में हम ये बताएंगे कि ये जो अपील है इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं एंड कॉपी ऑफ दैट प्रूफ आई हैव टू अटैच विद द CFSS फॉर्म। तो आरओसी उसको देखेगा, आरओसी अप्रूव करेगा और आरओसी भी जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है आरओसी भी उसको विड्रॉ करेगा। So this is sum and substance of what is called as the CFS 2020. Again, at the cost of repetition, it gives us only immunity from filing forms for additional fees for penalty and prosecution for forms. It does not give any immunity from non-compliance of law. अगर हमको MD appoint करना था, अगर हमको AGM within 6 months from the end of financial year hold करना था, हमको 30 सितंबर तक होल्ड करना था, 30 सितंबर फॉल्स ऑन संडे, उसके लिए हमारे को इम्यूनिटी नहीं है। अगर हम 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर को किए, देयर इज अ डिले इन होल्डिंग एजीएम, उसके लिए हमको इम्यूनिटी नहीं है। हमको सिर्फ इम्यूनिटी है फॉर्म फाइलिंग के लिए इम्यूनिटी है। सो व्हाट आई विल डू, इफ यू अलाउ मी 10-15 मिनट्स नवीन। यस सर। हाँ, 10-15 मिनट्स अगर हो तो वी कैन क्विकली गो थ्रू द केस स्टडीज। Yes, and I would also request if you can touch upon with respect to some new forms which has come up regarding the preparedness of the company. Some form was coming up in the portal. वो आया था, वो अभी They have withdrawn it. हाँ, डिसेबल कर दिया है। डिसेबल ही कर दिया है। हाँ, वो कोविड के लिए, तो जस्ट कोविड का प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा था, बट उसको डिसेबल कर दिया है अभी। If you can just say कि वो रिक्वायरमेंट नहीं है और फर्दर जो अभी रिसेंट कुछ फॉर्म्स वगैरह जो अप्रैल या मई में जो फाइल करने के हैं, जैसे डायरेक्टर केवाईसी वगैरह है या कुछ पोर्टल्स में एक्टिवेट हो गए हैं, if you can just touch upon those. Right. ठीक, ओके, राइट। नाउ
अब रहा कि government had told that we have to file one form relating to COVID preparedness that was there in the portal, but now this form is not active. Second, अब रहा कि after the close of the year हमारे को क्या क्या forms फाइल करना है. We all know हमारे को एक DPT3 फाइल करना है for financial year 1920. हमारे को एक MSME फॉर्म फाइल करना है. So these are the two basic forms. अगर हमने ई फॉर्म एक्टिव नहीं फाइल किया हमको वो करना है. अगर हमारा डायरेक्टर्स में कोई पर्टिकुलर्स में चेंज है तो हमको DI3 KYC फाइल करना है. नहीं तो हम DI3 वो वेब सर्विस में जाके वहां पे बोल सकते हैं कि देयर इज नो चेंज. ये सब हमको करना है. नाउ MSME फॉर्म इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑल्दो हमको यहीं पे फाइल करना है. इट स्टेम्स फ्रॉम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट. MSE के लिए कोई फीस नहीं है. हमारे पास DP3 फाइल करने के लिए अभी टाइम है. प्लस इन्होंने अभी ऐसे भी टाइम दे दिया कि अप्रैल से सितंबर तक जो आपको फाइल करना है आप फॉर्म फाइल कर दीजिए, उसका आप इम्यूनिटी ले लीजिए फॉर्म फाइल करके. कल को है कि हमको इम्यूनिटी नहीं लेना है तो हमको विद इन ड्यू डेट, आई थिंक इट इज 30 जून, हमको 30 जून तक फाइल करना है. MSME इज नॉट कवर्ड अंडर दिस इम्यूनिटी क्योंकि MSME तो ऐसे भी उसके लिए कोई फाइलिंग फीस नहीं है. बट अगर आपने बट हमको DR3 एक्टिव करना ही पड़ेगा हमारा सारा डायरेक्टर का. अगर कोई चेंज है, अगर कोई चेंज नहीं है तो वेब सर्विस में जाके खाली यस नो करना है. इट हार्डली टेक्स 10-20 सेकेंड हमको वो कर देना चाहिए. एंड अभी बेस्ट चांस है कि जो भी हमने फॉर्म नहीं फाइल किया है, स्पेशली बहुत कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर पाए क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी चाहिए. तो कंपनी सेक्रेटरी नहीं हुआ तो INC एक्टिव नहीं हुआ. INC एक्टिव नहीं हुआ तो फॉर्म फाइलिंग नहीं हो रहा है. बहुत सारा फॉर्म फाइलिंग नहीं हो रहा है. तो अभी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अभी तो लिमिट भी 10 करोड़ हो गया है 5 करोड़ का. तो आप INC एक्टिव फॉर्म फाइल कीजिए, DIR3 KYC कीजिए एंड देन क्विकली गो अहेड विद फाइलिंग ऑफ ऑल दी फॉर्म्स. तो अभी दिस आई थिंक दिस गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आई डोंट थिंक पास्ट में भी जो स्कीम आया है ऐसा कोई स्कीम आया है. इट इज अ excellent scheme and everybody, all professionals should take due care and because अभी क्या कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि 2 साल 4 साल 5 साल जो भी नहीं हुआ है सबका सब फाइल कीजिए आप. हाँ, नॉट ऑल फॉर्म्स आर कवर्ड, अ फ्यू फॉर्म्स आर नॉट कवर्ड, तो ठीक है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. बट जितना कवर्ड है वन कैन गो अहेड एंड विद फाइल द फॉर्म. So Naveen, another 10-15 minutes we'll take some cases. We can take 10 minutes, sir. Then we हाँ, can 10 have question answer round. या तो we'll just 10 minutes में जो important है, आई एम एक मिनट स्लाइड शेयर करना पड़ेगा ना. जी सर. 1 second. शेयर स्क्रीन. So we'll quickly go through the questions because most of the I think it is visible. Yes, it's visible. It's visible, sir. हाँ, तो most of the questions we have covered. जो question नहीं है, so I'll just read out the answers to most of the questions. कि it applies also to foreign companies. क्या हो गया? Yeah, it applies also to foreign companies. Yeah. Now, if the company is under liquidation, उसका क्या होगा? तो यहाँ भी बोल रहे हैं even if your company is under liquidation, most of the forms are allowed to be filed. अगर आपका कंपनी लिक्विडेट हो गया है देन तो आपके पास खाली INC 28 है. बट अगर कंपनी आपका लिक्विडेशन में देन ऑल्सो यू कैन गो अहेड विद फाइलिंग ऑफ द फॉर्म. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नॉर्मली कंपनीज व्हिच आर अंडर लिक्विडेशन उनके बहुत सारे फॉर्म फाइल नहीं होते हैं. डीएक्टिवेटेड डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर डीएक्टिव है वो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं. आप DIR3 KYC फाइल कीजिए. बट अगर वो डिस्क्वालिफाइड है देयर इज नो व्हाट यू कॉल्ड बेनिफिट ऑफ दोज डिस्क्वालिफाइड. जो डिस्क्वालिफाइड है वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा. अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन की कोई शिकायत है देन यू नीड टू गो टू द कोर्ट. नाउ अगर होल्डिंग कंपनी लिक्विडेशन में है तो सब्सिडरी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है. यस, सब्सिडरी अपना रिटर्न फाइल से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है AOC4 हम फाइल इस साल का कर सकते हैं विदाउट प्रीवियस ईयर. तो बोला जैसे मैंने कहा कि यस यू कैन फाइल, बट इंपॉर्टेंट इज कि आप भाई बीच का साल को आप ऐसा मत कीजिए कि आप फाइल नहीं करेंगे. प्लीज डू नॉट डू दैट प्रैक्टिस.
आप whether any separate AOC4 and MGT is to be filed for companies under liquidation, जो under liquidation है उसके लिए कोई separate balance sheet PL तो बनता नहीं है, only receipt and payment बनता है, तो AOC4 और MGT7 फाइल करने का कोई प्रश्न नहीं है. Now whether CFS scheme is applicable for company which has been automatically struck off, नहीं automatically struck off हो गया है, तो you need to go to NCLT, revise them, file one INC 28 और NCLT order, that should be done before 30th September और तभी आप proceed कर सकते हैं. For MGT 14 AOC4 for past year do we not to need to apply for condonation? जैसे हमने कहा MGT 14 300 दिन के beyond है, तो you need to seek central government condonation. AOC4 के लिए कोई condonation नहीं है, you can straight away go and file AOC4. If the company is in active mode but the directors are deactivated, तो आप वही जैसे बोला DIR3 KYC फाइल कीजिए, और बहुत अच्छा है, आपको आज अभी कोई फीस भी नहीं लगेगा. Now, अगर company was struck off and as a result board directors disqualified, as we said back end से appointment कीजिए, director का disqualification चला नहीं जाएगा, director का disqualification नहीं जाएगा, that is a process of law, but आप back end से appoint करके अपना form file कर सकते हैं. INC 28 is not filed within 20 days, it can be filed by an authorized signatory, आप back end से उसको add करा लो, जैसे अभी discuss किया. Then can a company also file its old annual returns? Yes, without additional fees. वो 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना इच्छा फाइल करे. Company is an inactive company, SH7. As I said, SH7 के लिए कोई रेमेडी नहीं है. Inactive है तो एक्टिव करो, एक्टिव करके आप फाइल कर दो फॉर्म. List of forms. This list of forms are given. There are 76 forms जिसपे आपको ये स्कीम अप्लाई करेगा. That is given. These are illustrative forms. चार्ज फॉर्म फाइल नहीं किया, तो चार्ज फॉर्म के लिए कोई इसमें नहीं है. आपको अगर आपने CHGR4 नहीं फाइल किया तो आप RD के पास जाइए, उससे कंडोनेशन ऑफ डी ले लीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं. ये स्कीम में चार्ज फॉर्म्स और SH7 अप्लाई नहीं आता है. वी हैव गिवन INC 20A कि अगर 180 डेज का आपको एक्स्ट्रा टाइम है, तो हाउ डू वी रेक्टिफाई AOC4 विद इंडियन? दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस नंबर ऑफ प्रोफेसर, इवन यस्टरडे अ क्वेश्चन वाज रेज्ड कि हमने लास्ट 4 साल से IOC फाइल कर दिया, अब उस कंपनी में CFS भी फाइल करना था, बट हमने टिक कर दिया कि CFS नहीं है, अब हम क्या करें? तो अब हम क्या AOC4 CFS फाइल कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार, कन्विंस द रजिस्ट्रार कि देखो भाई हमारा CFS था, हमने गलती से वहां पे सिर्फ टिक किया कि कंपनी डज नॉट हैव एनी CFS, तो इस बोल के अब हम AOC4 CFS नहीं फाइल कर सकते. So if he agrees based on your indemnity and affidavit, he can mark the form as defective. उसके बाद आप वापस से AOC4 और AOC4 CFS फाइल कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. तो उससे आप सब चीज से बच गए, कोई पेनल्टी नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई एडिशनल फाइल्स नहीं. So this is very good time opportunity for many companies who have not done CFS to avail this opportunity. बट इसमें ये हो सकता है कोई बोलेगा कि भाई हमने डायरेक्टर रिपोर्ट पे तो CFS के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, ठीक है ना? तो अब आप डायरेक्टर रिपोर्ट तो टेक्निकली रिवाइज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं आज के दिन कि आप आज जो फाइल कर रहे हैं वो बैलेंस शीट बना हुआ है. इट्स नॉट डेट कि आप आज के दिन बैलेंस शीट 2017, 18, 19 का CFS बना रहे हैं. आई प्रिज्यूम कि 17 में, 18 में, 19 में बैलेंस शीट बना हुआ था. आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. बना हुआ था. अब डायरेक्टर रिपोर्ट तो AOC4 के साथ फाइल हो गया. अब उसमें हमको जो CFS के बारे में डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना था, वी हैव नॉट रिटन, सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. When somebody does an inspection or inquiry 206 में inspection, उस समय अगर कुछ पकड़ाई में आया, then there will be what you called fine or penalty as may be levied by 101(34) for insufficient information in director report. So ये भी हो गया क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन आया कि भाई हमने तो एडिशनल फीस भर के देके लास्ट ईयर तक फाइल कर दिया है, अब आप ये नया लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अप्रैल से सितंबर फाइल कर दो. तो आज हमने तो लास्ट ईयर में 16, 17, 18 का फाइल किया, तो हमने तो हर साल हर फॉर्म के लिए 6,000 रुपया एडिशनल फीस दे दिया है. अब आप इन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई तुम अप्रैल से सितंबर फाइल कर दो, वी विल नॉट चार्ज एनी एडिशनल फीस. तो हमारे साथ तो इनजस्टिस है, मेरे को रिफंड मिलना चाहिए, मैंने जो एडिशनल फीस दिया. दिस स्कीम सेज दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वीवर. जो आपने दे दिया सो दे दिया. इस स्कीम के तहत अगर कोई एडिशनल फीस लगता तो हम नहीं लेंगे, बट जो आपने दे दिया एडिशनल फीस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिफंड ऑफ एडिशनल फीस. यस, फॉरेन कंपनीज हैविंग प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, उस पे भी अप्लाई होगा. दैट वी हैव डिस्कस्ड. न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, ये भी है, ये भी डिस्कस हो गया.
this is discussed immunity. हाँ, whether immunity certificate be generated automatically once CFSS is uploaded. तो जैसे कहा कि सितंबर तक हम फॉर्म फाइल करें, 1 अक्टूबर के बाद ये CFSS फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फाइल करें. तो अब ये क्या है, ये बोल रहे ROC एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद उसको लगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही ढंग से भरा है, तब वो आपको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट दे देगा. तो ये हो गया. अब रहा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि नहीं, ये तो है कि एडिशनल फीस नहीं मिलेगा. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैन अ कंपनी हुज डायरेक्टर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड यूज दिस स्कीम? नहीं, डायरेक्टर जो डिस्क्वालिफाइड है सेट उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा. हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि हम जब अभी फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हम जब फीस इंक्वायर करते हैं तो वो मेरे को नॉर्मल और एडिशनल फीस दोनों दिखाता है. तो आप तो बोल रहे हैं कि स्कीम में एडिशनल फीस वेवर हो जाएगा, तो आज मैं AOC4 बोलता हूँ कि मेरे को भरना है इंक्वायर फीस में, तो मेरे को ओरिजिनल और एडिशनल फीस, नॉर्मल और एडिशनल दोनों आ रहा है. तो ये बोल रहा है कि ये आपको इंक्वायर में दिखाएगा, बट आप जब फॉर्म फाइल करेंगे तब आपको ये नहीं लगेगा. जब आप फॉर्म अपलोड करने जाएंगे तब आपको नॉर्मल फीस ही चार्ज होगा, तब एडिशनल फीस चार्ज नहीं होगा. तो खाली इंक्वायरी से वो आपको एडिशनल फीस बता रहे, यू नीड नॉट गेट पर्ट आउट बाय दैट. Which form to be filed earlier, CFS और belated forms? तो CFS 2020 लास्ट में है, पहले सारा फॉर्म फाइल कर दो, उसके बाद CFS 20. इसीलिए उन्होंने कहा कि हम CFS 2020 को तो अभी पोर्टल में ही नहीं ला रहे हैं, हम ये पोर्टल में 1 अक्टूबर से लाएंगे. जब ये करेंसी ऑफ फाइलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये फॉर्म लाएंगे. Annual return as well as auditor appointment is not done since 2015. Can private limited avail the scheme? मैंने we have to read these questions in two ways. एक है कि हमने किया ही नहीं, और दूसरा है हम कर रखे हैं बट हम फॉर्म नहीं फाइल किए. तो हमने एनुअल रिटर्न बनाया बट फाइल नहीं किया, हमने ऑडिटर अपॉइंट किया बट ADT1 नहीं फाइल किया. तो इस स्कीम में आप जाइए, ADT1 MGT7 सब फाइल कर दीजिए. बट अगर हम बोलेंगे कि हम एनुअल रिटर्न नहीं बनाए, हमने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं किया, हम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आज करेंगे, हम AGM आज होल्ड करेंगे, तो हमको नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिले इन होल्डिंग ऑफ AGM, इसका जो कंसिक्वेंसेस है लॉ में, उससे हमको बचत नहीं मिलेगा. तो ये बोल रहे हैं बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मिल जाएगा. इज द कंपनी अंडर NCLT एंड ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय IP? अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वेदर ही कैन ऑप्ट? यस, ही कैन वेरी वेल ऑप्ट ऑफ द स्कीम. अगर कंपनी स्टॉक ऑफ नहीं है तो इवन IP कैन अवेल द स्कीम एंड फाइल ऑल द फॉर्म, बिकॉज वी ऑल नो कि जब कंपनी एडमिट हो जाता है इंसॉल्वेंसी में तो IP इज द बॉस, तो IP यूजिंग इट डिजिटल सिग्नेचर विल फॉर्म ऑल द फॉर्म्स. Is the form CFS available? The form will be available on 1st October 2020. So these were all the FAQs. अगर कोई So can we take question answers right now, sir? Yeah, definitely. I would call upon Girdhari Sharma ji and Mayank Agarwal, if they can have collected some questions, they can ask now. There are one questions, how closing stock physical verification note to be accounted for in Caro since office were closed as on 31st March. तो ये क्वेश्चन आया है. हाँ, ठीक है. No problem. Although it does not directly relate to these amendments under Companies Act, but still I'll try to answer. तो रहा कि there is a trading company or there is a manufacturing company, उसके पास closing stock था. अब ये क्लोजिंग स्टॉक चूंकि फैक्ट्री या ऑफिस बंद था तो 31 मार्च को इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. ठीक है. नाउ इफ यू सी द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वी हैव अ नंबर ऑफ प्रोसीडियर्स. इफ द कंपनी इज फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंटरी, तो कंपनी में भी फॉलोइंग परपेचुअल एंट्री और वो रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करती रहती है. एक कंपनी है अगर वो ये कर रही है तो मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च इट हैज नॉट बीन एबल टू डू द रिमेनिंग आइटम्स, तो इट कैन ऑलवेज सब्सिक्वेंटली डू. Now let us take a case कि ऑडिटर ने देखा पास्ट में हमेशा कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करती थी ईयर एंड में,
and there is no much variation. There is no much variation. अब इस साल भी जब आया 31st मार्च में नहीं की, तो auditor can jolly well do the physical verification. The management can jolly well do the physical verification today. Do a little back calculation. Do a little back calculation to arrive at the inventory as on 31st March. And if the auditor is reasonably satisfied, then it is in order. कोई problem नहीं. तो उस केस में वो लिखेगा कि हम लोग बाद में बैक कैलकुलेशन किए, या सिंपल लिख देगा कि No, भाई ठीक है? नहीं, देखिए क्या है ना, it is I think it is a myth. Many times we say कि अगर हम 25 कंपनी का ऑडिट करते हैं तो 25 का 31st मार्च में मैं या मेरा टीम वहां प्रेजेंट था. ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है. प्रैक्टिकली कंपनी परपिचुअल इन्वेंटरी करती है, तो हमारे को जरूरी नहीं है कि जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करे तो हम वहां खड़े ही रहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि एक कंपनी का 20 लोकेशन, 25 लोकेशन हो सकता है. इंपॉर्टेंट इज कि ऑडिटर विल सी द प्रोसीडियर्स कि क्या प्रोसीडियर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन है. एंड मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मतलब डाउन द लाइन ऑथोरिटी है, किसी ने ऑथराइज किया, किसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, वो रिपोर्ट आया, डिस्क्रिपेंसी हुई, वो डिस्क्रिपेंसी को कैसे डील किया, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड ऑडिटर इज सेटिस्फाइड. ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटर टेस्ट वेरिफिकेशन भी करता है, बट ये नहीं है कि 31st मार्च को ही करता है. इवन सब्सिक्वेंट टू द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब हम ऑडिट करते हैं तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं. वी डू द बैक कैलकुलेशन and arrive at the conclusion. Sir, next question. Even if we say that physical verification has been conducted by management at reasonable intervals, that is sufficient. Thank you, sir. वो एक क्वेश्चन तो आपने बता दिया, वही है कि सर if allotment procedures are followed, share certificates are issued, जी. PS4 notified, can we take this benefit of the scheme? No. अगर हमने रुपया यूज कर लिया है और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल किया फॉर प्रेफरेंशियल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू राइट इशू. राइट इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम है, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. तो हमारा सेक्शन 42 का वायलेशन है, उसका कंसीक्वेंस अलग होगा. एक क्वेश्चन, जिसका लास्ट ईयर 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल था, वो अभी 10 करोड़ का लिमिट यूज कर सकता है क्या INC 22 के लिए? INC 22 एक्टिव फॉर्म आई बिलीव. हाँ, एक्टिव फॉर्म आई फील. हाँ, तो मैंने उस समय वो फाइल नहीं हुआ था क्योंकि उसका कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, तो फॉर्म फाइल नहीं हो रहा था. अब तो 10 करोड़ का लिमिट है, तो एज्यूमिंग उसका कंपनी 10 करोड़ के नीचे है, तो ई फॉर्म एक्टिव तो आज के डेट में फाइल करना है, तो हम आज के डेट में फाइल करके स्कीम का बेनिफिट ले लेते हैं. सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करके, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जरूरत ही नहीं 10 करोड़ के नीचे. 10 करोड़ के नीचे अब जरूरत नहीं है. जरूरत ही नहीं. थैंक यू सर, यही इतने ही क्वेश्चन है बस. हाँ, थैंक यू सर. थैंक यू. I would request if any participant has further any more questions, they can put forward in the chat box so that we can take it forward. मोहित जी, नवीन, Yes. your permission, मोहित जी को एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. Yes, please. मोहित जी, जो अक्टूबर में 1 तारीख को CFS से फॉर्म एक्टिव करेंगे, हाँ, वो ROC अप्रूव करेगा, हाँ. सब्जेक्टिव है. अगर वो अप्रूव नहीं करता तो क्या होंगे रिपोर्ट? ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है. बहुत मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है, MCA का एक प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा है कि कल को हम अभी तक जो फॉर्म दिए हैं वो हमारे समझ से जितना है हमने दिया है. कल को आपको ऐसा लगता है, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई आप बोल रहे हैं MGT 14 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमको CG सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करना होगा. बोला आपको इस स्कीम को अवेल करने के लिए जो भी तकलीफ आएगी, if it is communicated to us, we will ensure that all those things are put on fast track. आप जब ROC भी जो अप्रूव करेगा, देखिए it will be a system driven approach. तो मतलब आपने उसमें 10 फॉर्म का डिटेल दिया है विद SRN. अब कल को वही उसमें आपने गलत SRN दे दिया या कंपनी X ने फाइल किया Y का दे दिया, तो देन तो सिस्टम ही डिटेक्ट नहीं करेगा. माने इट इज नॉट दैट कि ROC फिजिकली देखेगा, इट विल बी सिस्टम ड्रिवन. थैंक यू. Anyone wants to ask any question? मेरा एक क्वेश्चन था, किसी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइल करने थे, उन्होंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन तो किया नहीं, किए भी नहीं, तो अभी वो करे कि नहीं करे वो पूछते हैं. सर करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टर रिपोर्ट में CFS के बारे में नहीं लिखे तो ये जो डिफॉल्ट है, इट इज अ स्मॉलर डिफॉल्ट कंपेयर टू यू नॉट प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके नहीं फाइल करते हैं तो एक सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 का कंसीक्वेंस आता है दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट आर रिस्पांसिबल.
प्लस आपको जो CFS फाइल करना था उसका जो सेक्शन 143 है उसके अगेंस्ट आप अदर माने अगेन डिफॉल्ट में होते हैं, तो आपके पास दो है। आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमने सब कंप्लाई किया, हमने 134 में डायरेक्टर रिपोर्ट में वी डिड नॉट ओमिटेड टू राइट ऑन द ये, और मे बी आप CFSS के साथ भी जो डायरेक्टर रिपोर्ट आप अटैच करेंगे तो आप चेंज तो कर नहीं सकते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट तो वही रहेगा। ठीक है, इट वाज एन इंटेंडेड अनइंटेंडेड ओमिशन, सब्सटेंशियल कंप्लायंट ऑफ लॉ हैज बीन मेड, तो आपका जो रिगर्स ऑफ पेनल्टी है वो कम होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तब आपके पास दो हो जाएगा, और ये दिस विल बी अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। मान लीजिए 4 साल बाद 5 साल बाद ये अगर डिफॉल्ट पकड़ा गया, देन इट इज वेरी डैमेजिंग। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, और इम्पोर्टेंट गिरिराज जी, AOC4 और CFS में पर डे का फाइन हो गया, तो कल को 2 साल बाद वो डिटेक्ट करेगा, बोलेगा आप फाइल करो तो पेनल्टी माने हमारा एडिशनल फीस नहीं है। मालूम पड़ा कि नहीं हुआ, फिर बोले पेनल्टी बहुत लग जाएगा, क्या करेंगे, सोच रहे थे। ये सोचने का नहीं है, मैंने आई विल से जैसे देखिए विवाद से विश्वास, ये सबका विश्वास जो भी है, ये इसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट को ऐसे समझाना पड़ता है कि भाई पैसा तो बहुत लग रहा है, लेकिन आप भाई कितना पैसा लग रहा है, अगर आपका केस रिओपन हुआ है 11 का 12 का, तो आपने जो 8 साल पहले टैक्स आपको देना था, सरकार तो आज भी उतना ही मांग रहा है, तो वो रुपया आपको जो 8 साल का आप सरकार का पैसा फोकट में यूज किए, एज गुड एज दैट। तो इंटेंट है देने का, तब तो आदमी को भारी नहीं लगेगा। और आज तो ये बताना चाहिए कि भाई आपको तो फीस क्या लग रहा है, 500 रुपए तो लग रहे हैं, हाँ, अभी तो बेस्ट है। बाकी का तो ऑडिटर लेगा बनाने का फीस, तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू, सही बात, अच्छी बात, बहुत मौका मिल गया है, रेगुलर हाँ। 2-3 साल के पेंडिंग है तो वो भी कर लो, बिल्कुल एकदम करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। थैंक यू। Any more questions? Guests can unmute themselves and ask question directly. I think there are no more questions. Then shall we wrap up the meeting, sir? Yeah, I think so. So, थैंक्स तो दोगे पहले। हाँ वही we will be wrapping up this meeting. I hope there is no more questions left. CA Umang Chapadia was supposed to give vote of thanks, but I think he is not online right now. So I'll be taking the opportunity to thank Mohit ji on his behalf, and as well as Views Exchange. On behalf of all the members who have joined in, I think Mohit ji has deliberated in length the notifications and circulars which the government of India has published with respect to the COVID-19 benefits to the organizations as well as to general public. In details, he has gone through whether the deadlines for shareholders meetings, where the location of meetings has to be, what should be the calendar year ending on 31st December, what benefits they are getting, which forms we can file, which forms we cannot file, and also the new schemes, the company's fresh start scheme, whereby all the filings which we have not done, the companies has not done for last long, they can make a fresh start and move ahead. He also dealt with respect to the immunity certificate which the ROC will be giving, as well as the new forms. I think all the questions has also been answered, and I thank you, Mohit ji, on this sparing the time from your home and giving the information to the fraternity. I hope everybody is enlightened by the discussions which we have done. I thank you, sir, and Thank you. I request all the members to be safe and stay home. We'll be organizing these meetings quite frequently right now on the various other topics, and we'll be posting you the same through WhatsApp and also email. For the time being, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Signing Mohit ji. out. Thank you. Thank you, Mohit ji.